1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हेब्रियोस 9 चैप्टर 11 वर्स से 28 वर्स तक, लैमेंटेशंस 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 11 वचन से 28 वचन और विलाप गीत 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमें रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पे प्रार्थना और आराधना का महत्व पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा सिखाया और उसके अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन बदलने के लिए तू रास्ता बना। हमारा जीवन तेरे योजना में जैसा हमें सिखाया गया उस तेरे योजना में तेरी इच्छा में ढल कर आए और हम ये सब कुछ में जो अभी बाइबल रीडिंग के समय में आ रहे हैं इसमें भी हमें तू सहायता करे। हमने जो कबूली की है, मनन किया है वचनों का, वो सब कुछ पवित्र आत्मा इकट्ठा हमारे अंदर फलदायी बना। हमारा समय बदल दे, हमें परमेश्वर में बड़े उजियाले के साथ आनंद और उत्सव मनाते हुए, जीत का झंडा लहराते हुए हमें आगे जीवन जीने के लिए सहायता करो पवित्र आत्मा। हम विश्वास और आशा और प्रेम के द्वारा इस सब के साथ साथ हम परमेश्वर के उन्नति में दिखाई दे। प्रभु यीशु के आगमन तक हमारा अभिषेक बरकरार रहे। ऐसे महान काम हमारे जीवन में कीजिए। ये वचन जो अब हम पढ़ रहे खुदा, इसमें से हम कुछ भी खुद नहीं समझ सकते हैं सिवाय आप हमें समझाए। अगर आपने समझाया तो हम कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो इसमें से हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। इब्रियस 9 चैप्टर 11 to 28 वर्स। इब्रानियों की पत्री हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। हेब्रियस 9 चैप्टर 11 to 28 वर्स BSI किंग्स जेम्स वर्जन में से। But Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood, for when Moses had spoken every precept to all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood,
and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय 11 वचन से 28 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मसीह के लहू के सामर्थ्य। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर आप अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों का छिड़क जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। ये 21 वचन को ध्यान रखिए, छिड़कना बहुत ज़रूरी है। ओके, छिड़कना है हमको। हमने मुंह से शब्दों को बोलते हुए भी छिड़क सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू मैं छिड़क देती हूँ अपने घर के ऊपर, अपने दरवाजे के ऊपर, ओके, अपने खिड़कियों के ऊपर, अपने चौखटों के ऊपर, हर एक घर के कोने कोने में, हिस्से हिस्से में यीशु का लहू मैं छिड़क देती हूँ। अपने पैसेज में, बालकनी में,
हर एक चीज़ों के ऊपर, धूल मिट्टी कण के ऊपर, हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल, हर एक वायु के ऊपर होली गोस्ट फायर उतर कर आए, यीशु मसीह का आग उतर कर आए, यीशु मसीह के लहू को मैं छिड़क कर पवित्र और शुद्ध करती हूँ। इस प्रकार से आप बोलना है। ओके, हमारे खाने पीने की चीज़ों में, पानी के अंदर, हम जो पानी पीते हैं, हमारे स्टोर करके रखे हुए चीज़ों के अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हमारे घर में लेकर रखी है, उनके ऊपर यीशु मसीह का लहू हम छिड़क देते हैं। ओके, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे नाम, बैंक अकाउंट, बैंक नेम, बैंक डिटेल्स के ऊपर, हमारा चाल चलन, हमारे सारे शरीर के भाग, चिन्ह, जो भी हमारे ऊपर मार्किंग है, सब कुछ के ऊपर यीशु का लहू हम छिड़क देते हैं। देखो, अगर आपको यीशु का लहू छिड़क जाना मालूम पड़ जाता है क्या काम करता है वो, तभी जाके आप उसको छिड़केंगे और काम करेंगे। यीशु का लहू क्यों छिड़काया जाता था, पहले क्यों छिड़काया जाता, पुराने नियम में वो बलिदान के लहू को क्यों छिड़काया जाता था, वो शुद्ध करने के लिए, समझा। और शुद्ध करके क्या करना था, सेवा करने के लिए, जो काम व्यवस्था में दिया गया है उसे करने के लिए। तो शुद्ध होने के लिए हमको होली गोस्ट फायर बोलकर या हम ऐसे नहीं चल सकते। शुद्ध होने के लिए हमको यीशु मसीह का लहू दिया गया है। ओके, और जो अशुद्धता है उसको भस्म करने वाला होली गोस्ट फायर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका बलिदान स्वीकारे, हो सकता है आप टायर दे रहे, ऑफरिंग दे रहे, खाना खाने बैठे हैं, आप बाहर से कुछ लेकर आए खाने के लिए, पानी या पी रहे, या कहीं पर आप कुछ चप्पल्स वगैरह कुछ बाहर छोड़ दिए, अब आपको पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, तो आप उसके ऊपर से कुछ शक्तियों को हटाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है तो आपने शक्तियों को हटाना है तो होली गोस्ट फायर बोल देना है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते भटक ना जाए, ओके, परमेश्वर का उपस्थिति आप खो ना दे, तो परमेश्वर शुद्धता में उपस्थिति रखता है, तो वो उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आपको यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अगर आपको दुष्ट आत्माओं को हटाना है तो यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करेगा, चीज़ों को शुद्ध करेगा, लेकिन यीशु मसीह का लहू दुष्ट आत्माओं को रोकता है, सिर्फ रोकेगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा उसको। और फिर दुष्ट आत्माओं को भस्म करने का काम पवित्र आत्मा का आग करता है। समझ में आया? पवित्र आत्मा का आग आत्माओं को भस्म करता है। इसके लिए पहले ही वचन में लिख कर रखा है कि दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर आग में जला के भस्म करने का पनिशमेंट रखा है। इसके लिए वो गदरेन का दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो कुछ हजार दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थे, वो नमन करता हुआ यीशु के सामने आया कि तू इतनी जल्दी क्यों आया, क्योंकि अभी तो हमारा समय नहीं, तू इतनी जल्दी आकर तू हमें परेशान करने के लिए आया है क्या? तो उसके अंदर आग है, पवित्र यीशु मसीह के अंदर आग है, और वो आग उनको परेशान करती है। समझ में आया? और आग का बपतिस्मा भी यीशु मसीह ही देता है। तो ये आग का कारण क्या है? आग का कारण है दुष्ट आत्माओं को जला के भस्म करने के लिए, ठीक है? और वो जल के भस्म होना नहीं चाहती है, इसके लिए वो भाग जाते हैं। ओके, इसके लिए वो रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर रुकेंगे तो ये तो भस्म करने के लिए ही आया है आग, ये तो आग भस्म करके ही जाएगा हमको, है ना? तो इसके लिए वो भस्म होने तक नहीं रुकती है, जल्दी से जगह छोड़ के भाग जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से आपको होली गोस्ट फायर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ लाए हैं, खाने के लिए लाए हैं, आपको पता नहीं वो परमेश्वर के रास्ते में आपके लिए वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, जैसा परमेश्वर शुद्ध ग्रहण करता है वैसा ही आप भी सब कुछ जो आपके लिए लेते हैं वो शुद्धता में होना चाहिए। तो आपके अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति खराब नहीं होगी, आपके अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति लगातार रहेगी। ये कारण से आपको यीशु मसीह का लहू बारंबार शुद्ध करने के लिए यूज़ करना है।
मुंह से बोलकर यूज़ करना है। अगर आप ऐसा यूज़ करते रहेंगे तो परमेश्वर के आत्मा को आपके अंदर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा आपके संगति का परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करना आसान हो जाता है। ओके, अशुद्धता में पवित्र आत्मा जल्दी से हमको समझ नहीं आता है, शुद्धता में पवित्र आत्मा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसके लिए हमको शुद्ध रहना है, लगातार लगातार लगातार। ओके, कोई बात नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आपको यीशु मसीह का लहू लेना है, शुद्ध हो जाना है। यीशु मसीह का लहू बातों से भी आप कर सकते हैं शुद्धता के लिए इस्तेमाल। यीशु मसीह का लहू आप पानी के ऊपर आप यीशु मसीह का लहू हो जाने के लिए प्रार्थना करके उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ चीज़ ही होनी चाहिए तभी वो आप यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मुंह से बोलकर यीशु मसीह का लहू शुद्धता के लिए इस्तेमाल करना है। मुंह से बोलकर मैं यीशु मसीह का लहू छिड़क देती हूँ, मेरे नए कंस्ट्रक्शन के ऊपर यीशु मसीह के लहू को छिड़क देती हूँ। मेरे घर के अंदर आए गए सारे लोगों के अशुद्ध काम जो भी रहेंगे नाश हो जाए, नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के आग में भस्म हो जाए और प्रभु यीशु के लहू में ये सब हमारा जो है सब कुछ जो नया बन चुका है या हम बना रहे सब कुछ शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। नासरी यीशु का लहू मैं छिड़क देती हूँ, वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ओके, इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को हमने दुष्ट शक्तियों को जला देना है और हमारी सारी जो अपने यूज़ की बातें हैं, उपयोग की बातें हैं, उसे शुद्ध करते रहना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी वजह से पवित्र आत्मा का इंस्ट्रक्शंस हमको जल्दी से फॉलो करने का समझ आ जाता है, नहीं तो लेट हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है और हम उसको समझ नहीं रहे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, 14 वचन से एक बार पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओके, तो आपको शुद्ध करने का रास्ता है ये यीशु मसीह का लहू। ठीक है, मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। 23 वचन से आगे, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए
अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। खत्म बात। ओके, इसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आए उनको पाप 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 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप को दूर कर दिया है। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है मनुष्यों के लिए। ओके, 27 वचन देखो, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या बार बार मरता है क्या मनुष्य? जो मर गया एक बार खत्म उसका, है ना, उसके बाद कुछ नहीं बाकी रहता है उसको और एक बार मरने के लिए पृथ्वी के ऊपर। तो उसके बाद उसका कहाँ पर मुलाकात होने वाला है? न्याय के सामने। ओके, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। ये दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के विषय में दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए मनुष्यों के लिए एक बार हमको इस पृथ्वी के जीवन आया है तो मृत्यु भी हमको चखना पड़ता है, और उसके बाद सीधा न्याय के सामने हमको खड़ा किया जाने वाला है। ये नियुक्त किया गया है, ये फिक्स किया गया है। वैसे अभी अब जो हम मसीह लोग हैं उनके लिए अलग है। देखिए क्या है, वो तो सब मनुष्यों के लिए बोला गया। 28 वचन में देखो, सिर्फ मसीहों के लिए लिखा गया है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग बहुतों के पापों को उठाने के लिए, अब आपको समझ में आया, सब पूरी दुनिया पाप से माफ़ी नहीं पा सकी आज तक, तो भी अभी भी मनुष्य जाति पाप के नीचे बैठी हुई है, जबकि यीशु मसीह ने सब पूरे जगत का पाप लेकर चला गया, लेकिन फिर भी मनुष्य उसको स्वीकार नहीं पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जितने लोगों ने स्वीकार लिया है, इसके लिए ये वचन इस प्रकार से बोल रहा है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, बहुतों के लिखा है, ऐसा नहीं कि सबके पापों को उठाने के लिए। ओके, तो जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो हमारी संख्या सिर्फ यीशु मसीह के आगमन तक ही रहने वाली है। ओके, जो बहुतों के पाप उठाने का ये जो गिनती है, बहुतों का ये जो गिनती है, ये गिनती सिर्फ यीशु मसीह के आगमन तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगर हम प्रभु यीशु में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले चुके हैं, तो हम उस बहुतों की गिनती में आ चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी के साथ रुकना है, क्योंकि ये नियुक्त किया है, मसीहों के लिए नियुक्त किया है। मनुष्यों के लिए क्या नियुक्त किया है? उनको एक बार पृथ्वी के ऊपर मृत्यु को चखना है, दूसरी बार उनका जो होना है वो न्याय के सामने खड़े होना है। ये उनका फिक्स कर दिया गया है। ओके, लेकिन हमारा मसीहों का वैसा नहीं है। मसीहों के लिए क्या लिखा है? हम विश्वास में आ चुके हैं, पाप माफ़ हो चुके। अब दूसरा जो है हमारा नियुक्ति किधर हो चुका है? हम यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा नियुक्ति हो चुका है, और मनुष्यों का नियुक्ति न्याय के लिए रहता है मृत्यु के बाद। हमारा नियुक्ति यीशु मसीह के आगमन के लिए है। हालेलुया। तो ये फ़र्क है मसीहों के बीच में और सारे मनुष्य जातियों के बीच में। ये फ़र्क में बने रहिए और अपने अभिषेक को खोना नहीं है।
और यीशु के लहू को शुद्ध करने के लिए हमारे ऊपर छिड़क कर यूज़ करना है। और शुद्ध रहने वाला हमेशा ही पवित्र आत्मा के बहुत ज़्यादा गंभीर बातों में शामिल हो जाता है, समझ आता है, उसको पवित्र आत्मा की भाषा समझ आती है और वो बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करता हुआ जाता है। तो यीशु के लहू को शुद्ध होने के लिए बारंबार इस्तेमाल करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमें आपके वचन बहुत गहराई से और ज़्यादा खुल कर हमें हमारे अंदर ये वचनों का भेद खोलते रहिए, ताकि हम सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के भरे हुए हम परमेश्वर की योजना में ठहराए गए, नियुक्त किए गए काम कर सके, ऐसे इंसान बन सके। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में से, और हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।